Children, how are you? A very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe at home. I know a lot of work is there to do in the maths, but we have to complete this lesson. So during vacation, you can complete your lesson in the notebook. So dear children, today we'll start our work from page number 74. Here these are your subtraction sums only, but with borrow. That means you have to borrow a number from the neighboring number. मतलब कि यहाँ पर आपको जो है 3 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसमें से अगर बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल write today's date, that is 26/10/2020, and classwork. This is your exercise 4. Now all these things what I am going to explain today, you have to do all these exercises in your notebook one time. So first we'll start with the numbers ones, tens and 100. So what is the number given? 732 minus 84. Now here you can see the digit at the 100th place is missing. That means either you can write 0 or you can leave the space as it is. यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. Now this is 2 which is a smaller number and this is a 4 which is a bigger number. So 2 में से हम 4 को कट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से इसको बोरो करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. Now dear children, you can see these circles are given. ये सर्कल में आप जो बोरो करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है. इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे. अभी 12 में से हमको 4 कट करना है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू काउंट 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now we have to cut 4. 1 2 3 and 4. What is left? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have written here 8. Now from here we have borrowed, that means from 3 we had borrowed 1/10 over here, so it became 12. Now 1/10 we have borrowed, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? यहाँ पर 2 रह जाएगा. Again 2 में से हम 8 कट नहीं कर सकते because 2 is a smaller number and 8 is a bigger number. So from here we are going to, from 100 place we are going to borrow 1. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. अभी 12 में से हम 8 को कट करेंगे. So again we are going to count 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now this time we have to cut 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So how many numbers are left? 1 2 3 and 4. So we have written here 4. Now from here we had borrowed, so this number will become 1 less, that means it will become 6. यहाँ से हमने बोरो किया, यहाँ पर कम हो जाएगा, एक 100 का नंबर कम हो जाएगा और यहाँ पर 6 रह जाएगा. अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, that means it is 0. So 6 minus 0 is 6. Now same way we move on to the second question. Now this is 607 minus 68. Now here the division is of, the subtraction is of 3 digit number with 2 digit numbers. मतलब कि 3 digit number में से हम 2 digit numbers को subtract कर रहे हैं यहाँ पर. Now this is 7, so from 7 you cannot subtract 8. That means you have to borrow from here, that it will become 17. Now we have to count 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. I am counting on the same hand because on the other hand I have got my mobile, so I cannot count on the other hand. इसलिए मैं वापस इसी में 16 और 17 काउंट कर रही हूँ, लेकिन आप दूसरे फिंगर्स पे, दूसरे हैंड के फिंगर्स पे काउंट कीजिएगा. ना इसमें से हमको 8 कट करना है. सो 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 8 कट कर लिया. अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we have written here 9. Now from here this was 0, that means from here we had borrowed. तो यहाँ पर क्या था? 10 के में से एक यहाँ पर बोरो किया, तो यहाँ क्या रह गया? 9 रह गया. 9 में से हमको क्या कट करना है? 6. So this is without borrow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cut 6. 1 2 3 4 5 and 6. How many numbers are left? Let us count. 1 2 and 3. So we have written here 3. अब यहाँ से हमने इसको बोरो किया था, इसे यहाँ पर 6 की जगह क्या रह जाएगा? 1 number less, so it will be 5. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 minus 0 is 5. So your answer is 539. Third question is
456 minus 68. Now here again this is 6 and this is 8, that means 6 is smaller. So we will borrow from here 16 minus 8. So first we'll count 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और again 16. अब 8 कट करेंगे 1, then 1, 2, 3 and 1 एक काउंट किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we'll count the remaining numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So यहाँ पर हमने 8 लिखा. अब हमने 14 यहाँ पर से बोरो किया, ऐसे ये 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. अगेन 4 में से हम 6 कट नहीं कर सकते, सो विल बोरो फ्रॉम हियर. सो 14 minus 6. सो काउंट 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Now cut 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Count the remaining numbers which are left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we have written here 8. Now we have borrowed from this number. So 4 will become 3. 3 minus 0 is 3. Then next is your 453 minus 87. So हमने यहाँ 5 में से borrow करा 3 पे, तो 13 आया. 13 minus 7 is 6. अब यहाँ से बोरो किया था तो 5 की जगह पर 4 रह जाएगा. नाउ अगेन वी हैव टू बोरो फ्रॉम हियर. सो 14 minus 8 is 6 and 3 minus 0 is 3. सो डियर चिल्ड्रन, सेम वे यू हैव टू डू द रिमेनिंग 4 सम्स ऑल्सो. यहाँ पर भी आपको 722 minus 36 कट करना है. उसके बाद 833 minus 77. सो सेम वे यू हैव टू बोरो द नंबर्स फ्रॉम हियर. और जो नंबर बोरो करके जो नया नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पर सर्कल में लिखना है. तो सेम वे यू हैव टू डू ऑल द सम्स. Now we will move on to next exercise, which is your exercise number 5. These are also your subtraction sums, but 3-digit subtraction. 3-digit number you have to subtract from another 3-digit numbers only. इसमें तीनों 3-digit numbers होंगे, पहला वाला भी और दूसरे दोनों numbers 3 digits हैं. Hello and a very good morning to all my dear students. Today in the maths we'll be continuing lesson number 3, that is the subtraction. We have done exercise number 4. Now today we'll be doing exercise number 5. But dear children, before I start explaining exercise number 5, on page number 75, I would like everybody to open page number 73, because there's some certain explanation part that I want to do about how you borrow the numbers and why you borrow the numbers, which is tens here and tens here. We say we have borrowed 1 tens, but how, that I want to explain. Now you can see here, subtract 84 from 632. Now subtract 84 from, मतलब कि 632 में से 84 को subtract करना है. वन फ्रॉम लिखा होता है और उसके बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखने का. दैट मीन्स दैट इज़ योर बिगर नंबर एंड 84 इज़ योर स्मॉलर नंबर. हमेशा जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं और छोटा नंबर बाद में लिखते हैं. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर 3 digits, ones, tens and hundreds, and here only 2 digits, ones and tens. तो हम पहले जो है नंबर्स लिखेंगे. पहले हम वंस, टेंस और 100 लिखेंगे. नेक्स्ट लाइन में हम नंबर लिखेंगे 632 और उसके बाद हम लिखेंगे 84. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग 84 यू विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, 4 and 8. लीव दिस एज इट इज़ और राइट 0, क्योंकि 100 के प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है. नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज 4. दैट मीन्स फ्रॉम 2 यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4. तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक टेंस जो है 1 जो है टेंस बोरो करना पड़ेगा. 1 टेंस मतलब क्या हो गया, 1 tens इज इक्वल टू 10 ones. 1 tens किसके बराबर होता है, 10 ones के बराबर होता है. अगर हम एक टेंस यहाँ लेते हैं तो एक ones के बराबर, मतलब एक टेंस अगर हम यहाँ से बोरो करते हैं तो वो 10 ones के बराबर, वो 10 नंबर जो है वो 10 ones के बराबर होता है. और हमारे पास ऑलरेडी 2 गिवन है और हमने यहाँ से एक बोरो किया 1 tens, तो हम क्या लिखेंगे, 1 tens इज इक्वल टू 10 ones हुआ. तो 1 ones 10 ones प्लस 2 ones दैट इज इक्वल टू 12 ones. मतलब कि
यहाँ से तो हमने एक ही बोरो किया, लेकिन उसका वैल्यू कितना है यहाँ पर आएगा, तो उसका वैल्यू 10 में हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास 2 नंबर ऑलरेडी है, 2 वंस, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 12 लिखा है। वैसे ही यहाँ पर जब 100 में से जब हम टेंस में करते हैं तो 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। 100 जो है वो 10 टेंस के बराबर होता है। इसलिए जब हम यहाँ पर जब बोरो करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 10 टेंस प्लस 2 टेंस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 टेंस ही है, और यहाँ से हमने बोरो किया 10 टेंस, मतलब 100 बोरो किया। और 100 को हम कैसे लिखेंगे, टेंस के उसमें 10 टेंस, मतलब 10 टेंस प्लस 2 टेंस, दैट इज इक्वल टू 12 टेंस। सो दिस इज द वे वी बोरो द नंबर्स। इन दोनों चीज़ों को आप अपने टेक्स्ट बुक में प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग्स दैट आई हैव अंडरलाइन विच इज ऑन पेज नंबर 73 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नॉर्मली हम ऐसे अगर इन द नॉर्मल वे, जनरली अगर इजी वे में अगर आपको सिखाया जाए तो आपको क्या करना है, ये 2 लिखा है, इसके पीछे आप 1 ऐड कर दीजिए, इट बिकम्स 12। और यहाँ से अगर हमने बोरो किया तो यहाँ पर कट करके जो है एक नंबर पहले का, मतलब बिफोर नंबर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोरो करेंगे यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 12 आ जाएगा। दैट इज़ द इजी वे टू अंडरस्टैंड कि जो भी नंबर दिया है वहाँ पे बोरो करते हैं तो वो कट करके ऊपर जो है या कट कर दीजिए और पूरा नंबर 12 लिख दीजिए, या यहाँ पर जो है पूरा आप 12 करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू। Now we'll start the exercise which is on page number 75. Now all these exercises you have to do it in your notebook also one time. Now this is your 3-digit number to be subtracted from another 3-digit number. Now 623 minus 475. Now 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से हम बोरो करेंगे। So 13 minus 5 is 8 और यहाँ पर 2 की जगह क्या रह जाएगा, 1. So we'll borrow from here. So 11 minus 7 is 4 and 6 minus 4 is 1. अब 6 की जगह पर यहाँ पर 5 रह जाएगा, तो 5 में से अगर हम 4 कट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ 6 में से हमने 2 को एक बोरो दिया तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, 6 की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 6 minus 1 is 5. So 5 minus 4 is equal to 1. So 148 is the answer. Next is your 343 minus 163. अब यहाँ पर देखिए ये भी 3 और ये भी 3 है, दैट मीन्स 3 minus 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 3 कट करें 1 2 3, सो नथिंग इज लेफ्ट, दैट इज 0. बट दिस इज 4 एंड दिस इज 6, सो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से बोरो करेंगे। सो 14 minus 6 is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. अब इसमें से 6 कट करिए, 1 2 3 4 5 and 6. Count the remaining numbers, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have written here 8. Now this was the number originally 3 था, अब 3 में से इधर बोरो किया तो यहाँ 2 रह जाएगा, 2 minus 1 is 1, that is 180. Now same with third sum, 524 minus 276. Now 14 minus 6, यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा आपको, 14 करना पड़ेगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए। So 14 minus 6 is 8, this will become 1. So borrow from here, it will become 11. 11 minus 7 is 4 and this will become 4 because you have given 1 borrow. So 5 minus 4, 5 की जगह 4 आ जाएगा, 4 minus 2 is 2. Now next here is 554 minus 476. Now 14 minus 6 यहाँ पे भी बोरो करना है और यहाँ पे भी, दोनों जगह आपको बोरो करना पड़ेगा। 14 minus 6 is 8, this will become 4. So यहाँ से बोरो करें, again 14 minus 7 is 7. Now this will become 5. 5 is there, 5 will become 4 here. 4 minus 4 is equal to 0. Same way 53 minus 657. So again you have to borrow from here. 13 minus 7 is 5. Borrowed from here, so this will become 4. And borrow from here, it will become 14. यहाँ से इसको borrow किया, इससे यहाँ 1 कम हो जाएगा, फिर यहाँ से borrow करेंगे तो ये 14 हो जाएगा क्योंकि 10 tens हमने borrow किया. So 14 minus 5 is 9 and already we have borrowed from here. So 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8. 8 minus 6 is 2. So dear children, same way you have to do all the subtraction sums. Now जी last sum है ना, this is without
borrow, because 9 minus 9 is 0, 8 minus 8 is 0, and 9 minus 7 is 2. 9 is a bigger number and 7 is a smaller number. So 9 में से जो है 7 कट हो सकता है तो 2 बचेगा. बाकी सारे जगह पर है आपको borrowing करना है. 1 or 2 places, this is the only sum where no borrowing is done. बाकी सारे में borrow है. अब उसके बाद जो next question है, more practice in subtraction. These are the mixed numbers with and without borrow. इसमें भी आपको mix मिलेगा. Somewhere you have to borrow and somewhere you don't have to borrow. Explaining few sums only, like 1 tens 100 is given. Now here there can be the numbers 3-digit numbers and below are the 2-digit numbers. So 246 minus 38. Now this is 6 and this is 8. That means you have to borrow from here. So 16 minus 8 is 8 and this will 4 की जगह पर क्या लिखेंगे 3. 3 minus 3 is 0 and 2 minus 0 is 2. Same way यहाँ पर आपको again you have to borrow. This is again 2-digit number. Below the number is 2-digit number. So 560 minus 89. यहाँ से बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 की जगह पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बिकॉज 1 tens वी हैव बोरोड और 1 tens प्लस 0 इज इक्वल टू 1 tens ओनली. दैट मीन्स 10 रहेगा. 10 minus 9 is 1. फ्रॉम हियर वी हैव बोरोड, सो 6 की जगह पर 5 आ जाएगा. वापस हमको यहाँ से बोरो करना है तो 15 minus 8 इज इक्वल टू 7. एंड फ्रॉम हियर वी हैड बोरोड, सो यहाँ पर एक नंबर कम हो जाएगा 4. 4 minus 0 इज इक्वल टू 4. Now this is the sum without borrow. आपको पहले नंबर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. This is 428 minus 17. Now this is 1 is smaller than 2 and 7 is smaller than 8. मतलब ये जो 7 है वो 8 से छोटा है और ये 1 है वो 2 से छोटा है, इसलिए बोरो करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है. ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा है नीचे दिए हुए नंबर से कि नहीं. अगर बड़ा है तो बोरो नहीं करना है, और अगर छोटा है और उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तभी हमको बोरो करना है, अदरवाइज हमको बोरो नहीं करना है. 8 minus 7 is 1, 2 minus 1 is 1 and 4 minus 0 is 4. Same way this sum is also like that. 628 minus 417. यहाँ पर तीनों डिजिट दिए हुए हैं. सो अगेन दिस इज 8, दिस इज 2 एंड दिस इज 6. मतलब कि जो ऊपर का नंबर है 628 इज बिगर देन 417. तो हम डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 8 minus 7 is 1, 2 minus 1 is 1 and 6 minus 4 is 2. Moving on to page number 76. ये भी डायरेक्ट आपका सम है. 864 minus 666. 4 minus 4 is 0, 6 minus 6 is 0 and 8 minus 6 is 2. उसके बाद ये भी डायरेक्ट है. यहाँ पर आपको जो है बोरो करना पड़ेगा. अब ये डायरेक्ट ही सम है. नाउ 692 minus 373. नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू बोरो फर्स्ट, so this will become 12. 12 minus 3 is 9 और यहाँ 9 की जगह 8 आ जाएगा, लेकिन 8 बड़ा है और 7 छोटा है, so 8 में से 7 हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं. तो 8 minus 7 is 1 and 6 minus 3 is 3. अब इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हमने बोरो इधर नहीं किया है, इसलिए ये नंबर एज इट इज ही रहेगा. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगर बोरो करेंगे तभी यहाँ पर जो है जो नंबर दिया है उससे एक नंबर लेस हम यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर. जैसे यहाँ से यहाँ बोरो किया था तो हमने यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ से यहाँ बोरो नहीं किया है, इसलिए हमने इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं किया है. Same way 594 minus 54. Now this is 54 only is 598. तो 8 में से 4 कट हो सकता है इजीली. So 8 minus 4 is 4. 9 में से भी 5 कट हो जाएगा. So 9 minus 5 is 4 and 5 minus 5 is 0. Now I'll explain this sum. यहाँ पर जो है 707 minus 527 is there. Now 7 minus 7 is 0. Both the numbers are same, so 0 हो जाएगा. और यहाँ पर 0 है, but this is 2, so we have to borrow from 100 to 10's place. So 10 minus 2 is 8 and यहाँ पर आप देखिए हमको कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 7 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. 6 minus 5 is equal to 1. So dear children, same way you have to do this. यहाँ पर तीनों जगह जो है नंबर में चेंजेस आएगा. यहाँ से इसको बोरो किया और यहाँ से इसको बोरो किया, और यहाँ पर जो है आप 100 से 10 के प्लेस में बोरो किया है, 1s के प्लेस में बोरो नहीं किया. इससे नंबर्स को केयरफुली स्टडी करिए.
दिस इज़ योर 436 एंड 273. तो ये जो 6 वंस का नंबर है वो बड़ा है, इसलिए बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए हमने डायरेक्टली 6 में से 3 को कट किया. लेकिन जो टेंस के प्लेस में नंबर है दैट इज़ 3, सो 3 इज स्मॉलर देन 7. सो फ्रॉम 3 यू कैन नॉट कट 7, सो यू हैव टू बोरो, सो इट विल बिकम 13 और यहाँ पर 3 आ जाएगा. सो दिस वे यू हैव टू डू ऑल द सम्स इन योर नोटबुक ऑल्सो वन टाइम. नाउ नेक्स्ट इज योर वर्ड प्रॉब्लम्स. Now dear children, we'll start with everyday maths. These are your word problems that you have to write it in your notebook also one time. As we have done the subtraction sum, same way you have to additions word problems, same way you have to do the subtraction word problems. These are easy ones. You have to underline the words which I have underlined in the question. You also will do it in your textbook because these are the words that you have to pay attention और इसको ध्यान से पढ़ना है. In our school, there are 982 children, out of which 509 are boys. How many girls are there? So एक स्कूल है उसमें 982 चिल्ड्रन है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 982, उसमें से 509 बॉयज़ है, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 982, 1 10 और 100 लिखेंगे. यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ है बट द स्पेस इज नॉट प्रॉपर, सो आई हैव रिटन इट हियर. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 982, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 509, दैट इज़ 509. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसमें हम माइनस करेंगे 982 माइनस 509. नाउ दिस इज अ स्मॉलर नंबर, सो वी आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम हियर. 12 minus 9 is 3, this will become 7, 7 minus 0 is 7 and 9 minus 5 is 4. So number of girls is 473. Now second question. In an examination, Anu scored 732 marks and Aruna scored 659 marks. Who scored more marks and by how much? So एक एग्जाम में अनु ने कितना स्कोर किया 732 मार्क्स स्कोर किया और अरुणा ने 659 मार्क्स स्कोर किए. तो किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए और कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए वो हमको फाइंड आउट करना है. द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, मार्क्स स्कोर्ड बाय अनु 732, मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुणा इज 659. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. बोरो फ्रॉम हियर 12 minus 9 is 3, अगेन दिस विल बिकम 2. बोरो फ्रॉम हियर 12 minus 5 is 7 and this will become 6. 6 minus 6 is 0. That means Anu scored more than Aruna by 73. मतलब अनु ने अरुणा से 73 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए. थर्ड वन. In a cinema hall, there are 763 seats, out of which 637 seats are arranged. How many seats are vacant? एक सिनेमा हॉल में 763 सीट्स हैं, उसमें से 637 सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड मतलब भर गई है. तो कितनी सीट्स वेकेंट मीन्स खाली है. Moving on to page number 77, we will see the statement of that question. Number of seats in a cinema hall is 763. Number of seats occupied मतलब भरी है कितनी 637. So first we'll do the subtraction, put a minus sign here. Now borrow 13 minus 7 is 6, 5 minus 3 is 2 and 7 minus 6 is 1. So 126 जो है seats वो vacant यानी कि खाली है. Now question number 4. A builder bought 900 tiles to cover a well. एक वेल को कवर करने के लिए एक बिल्डर ने 900 टाइल्स का यूज़ किया, खरीद कर लाया. आउट ऑफ दैट 824 टाइल्स वेर यूज्ड. अब 900 में से यूज़ कितना हुआ? द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड वेर 824. सो हाउ मेनी टाइल्स वेर लेफ्ट अनयूज्ड, मतलब कितने टाइल्स बाकी बचे रहे जिसका कि यूज़ नहीं हुआ. So total number of tiles, statement is 900. Number of tiles used is 824. So number of tiles left unused, मतलब बची हुई tiles कितनी हैं? Do the subtraction. Borrow from here. 10 minus 4 is 6. 9 minus 2 is 7 and 8 minus 8 is 0. That means 76 tiles were left unused. मतलब 76 tiles जो है बाकी रही जिनका यूज़ नहीं हुआ. Question number 5. There are 858 students in a school, out of which 8
723 are going on a school trip. How many students are not going on the trip? टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं? 558 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 723 स्टूडेंट्स जो है एक स्कूल ट्रिप में मतलब पिकनिक में जा रहे हैं. तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिकनिक में नहीं जा रहे? दैट नंबर वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ द स्टेटमेंट, number of students in a school. Now statement of question number 5 is, number of students in a school is 858. That is the number of students in the school. And number of students going on a trip, that means going on a picnic, is 723. 723. Now we will do the subtraction. Now here you have to do the subtraction without borrow. देखिए सारे नंबर जो हैं बड़े हैं, 858 और ये 7, 2 और 3 है, मतलब 8 बड़ा है, 5 भी बिगर नंबर है और यहाँ पर वापस 8, तीनों बिगर नंबर हैं. सो विदाउट बोरोइंग यू कैन हैव टू डू 8 minus 3 is 5, 5 minus 2 is 3 and 8 minus 7 is 1. That means what is the answer? Number of students not going on the trip are 135 students. उसके बाद next question is your sixth one. A shopkeeper bought 836 books. He sold 782 books. कितने बुक्स खरीदे? 836 बुक खरीदे और उसमें से 728 बुक्स जो है उसने बेचे, मतलब sold means बेचे. How many books are left अनसोल्ड, मतलब कितने बुक्स हैं जो बाकी रहे हैं, जो बिके नहीं हैं. तो नंबर ऑफ बुक्स शॉपकीपर बॉट, कितने बुक्स बॉट किए उसने? 836. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 836. देन नंबर ऑफ बुक्स शॉपकीपर सोल्ड, कितने सोल्ड किए? 728. दिस इज द नंबर दैट ही सोल्ड द बुक्स इन द शॉप. सो विल राइट हियर 728. नाउ दिस इज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड, माइनस करेंगे. अब यहाँ पर दोनों में बोरो करना है. 16, 6 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, सो 16 माइनस 8 इज 8. यहाँ पर 2 हो जाएगा 3 की जगह, तो 2 minus 2 is 0. एंड हियर इट विल बी, दिस नंबर विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट इज 8. 8 minus 7 is 1. दैट मीन्स 108 बुक्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, मतलब 108 बुक ऐसे हैं जो कि सोल्ड नहीं हो सके हैं और दैट आर रिमेनिंग इन द शॉप. Moving on to next question, that is your question number 7. Gautam's father got 393 toffees. Gautam distributed 297 toffees on his birthday. How many toffees were left? गौतम के पापा उसके बर्थडे पर कितनी टॉफीज लाए? 393 टॉफीज ही बॉट एंड गौतम डिस्ट्रीब्यूटेड 297 टॉफीज. गौतम ने 297 टॉफीज सबको बेची. 393 टोटल टॉफीज थी, उसमें से 297 टॉफीज उसने सबको बेच दी. तो कितनी टॉफीज गौतम के पास अब बाकी है? सो नंबर ऑफ टॉफीज, NO इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. नंबर्स को हम शॉर्ट में NO और डॉट करके लिखते हैं, दैट मीन्स नंबर. सो नंबर ऑफ टॉफीज 393 and number of toffees Gautam distributed कितनी है? 297. So we will do the subtraction. So put a minus sign. So यहाँ पर हम borrow करेंगे. 393 है, so 13 minus 7 is 6. फिर यहाँ पे 9 की जगह 8 हो जाएगा, so 18 minus 9 is 9 and from here you have borrowed, so this number will become 2. 2 minus 2 is 0. That means this is your 96. 96 toffees are left undistributed or left with the Gautam. So number of toffees left is equal to 96. सो इतने टॉफीज जो है गौतम के पास अभी भी बाकी हैं. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 78. हियर दिस एक्टिविटी वी विल डू इन द लास्ट. बिफोर दैट वी विल बी डूइंग द MCQs विच आर बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन. जैसे कि हमने एडिशन के MCQs किए, सेम वे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के MCQs करेंगे विच आर ऑन पेज नंबर 79. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। मतलब 62 इज ग्रेटर देन 165, दिस इज रॉन्ग। 165 इज ग्रेटर देन 174, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 245 इज ग्रेटर देन 174, दिस इज राइट। हमको ये साइन देखना है, ये साइन कौन सा करेक्ट लगा है, बिकॉज 245 इज ग्रेटर देन 174, सो दिस इज राइट एंड द अदर ऑप्शन इज रॉन्ग। द सेकेंड वन, difference between the largest two-digit number and the smallest two-digit number. So अब largest two-digit number क्या है 99 और smallest two-digit number क्या है 10. This is your largest two-digit number और ये 10 जो है smallest two-digit number है. इन दोनों का difference means इन दोनों को अगर minus करेंगे तो क्या आंसर आएगा? difference का मतलब minus. So 99 minus 10 is equal to 89. Your option B is correct. This is your largest number. हमेशा याद रखना 99 जो है 2 डिजिट में 2 ही डिजिट है 1 और 2 1 and 10. So this is your largest number और ये जो 10 है वो smallest number है. Now next is 321 प्लस 231. इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 + 1 2, 3 + 2 + 3 is 5 and 3 + 2 is also 5. So your option A is correct. 552 is correct. जो यहाँ पर आंसर हमको लिखना है 5, 5 and 2. Fourth one, Mr. Sharma wrote the problem shown in the box below. Mr. Sharma ने क्या प्रॉब्लम लिखी है देखते हैं. अजय एंड संजय हैव 14 पेन्स टुगेदर. अजय और संजय दोनों के पास मिलाकर 14 पेन्स हैं. हाउ मेनी पेन्स दे हैव? 14 पेन्स टुगेदर. नाउ अजय हैज 8 पेन्स. अजय के पास कितने पेन्स हैं? 8 पेन्स. हाउ मेनी पेन्स डज संजय है? तो अजय के पास अगर 8 पेन्स हैं तो संजय के पास कितने पेन्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 14. अजय हैज़ गॉट 8 पेन्स, सो 14 - 8 दैट इज इक्वल टू 6 पेन्स. तो अजय के पास संजय के पास कितने पेन्स होंगे? संजय के पास 6 पेन्स होंगे. योर ऑप्शन बी. नाउ फिफ्थ वन, 600 4 10s and 2 1s minus 200 5 10s and 4 1s is equal to. अब ये जो नंबर है पहले हम जो है उसको जो 1s 10s और 100 में दिया है इसको नॉर्मली हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. 600 4 10s 2 1s दैट इज 642 minus 200 5 10s and 4 1s minus 254. So the answer is 388. So अब जो ऑप्शन क्या है 800 7 10 6 1s यानी कि 876. तो ये तो आ ही नहीं सकता है. दिस इज योर 876. फिर बोथ ऑफ द आंसर अबव आंसर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता. और 876. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो ये जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नन ऑफ दिस, मतलब कि इसमें जितने भी ABC ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं इसमें. I will start with the 6th question. Anil painted a pole completely in blue or green. The blue part is 35 meters. The green part is 5 meters shorter than the blue part. How long is the green part? एक पोल को पेंट किया अनिल ने जिसको ब्लू और ग्रीन में पेंट किया. ब्लू का लेंथ दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ ब्लू पार्ट इज 35 meters. इट इज ऑल्सो सेड दैट द ग्रीन पार्ट इज 5 meters शॉर्टर देन द ब्लू पार्ट. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट इज जस्ट 5 meters लेस देन द 35 meters. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट? तो हम क्या करेंगे 35 meters में से 5 meters को कट कर देंगे तो 30 centimeters आंसर आएगा. दैट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट. 7th one, pick out the statement which is false. मतलब जो गलत है वो स्टेटमेंट पे हमको टिक करना है. 2 more than 100 is 200. That is wrong statement because 2 more than 100 will become 102, not 200. 20 less than 40 is 20. That is correct. 10 more than 20 is 30. This is also correct. And 3 more than 200 is 203. ये भी correct है. Only option A is wrong. That 2 more than 100 is 200. Now next one, Aruna has 55 hair clips. Anupa has 36 clips fewer than Aruna. How many hair clips does Anupa has? अरुणा के पास 55 हेयर क्लिप्स है और अनुपा के पास 36 हेयर क्लिप्स है. उससे कम है 36 हेयर क्लिप्स अरुणा से कम है. तो अनुपा के पास कितनी हेयर क्लिप्स है? तो हम क्या करेंगे अरुणा की जो हेयर क्लिप्स है उसमें से 36 लेस कर देंगे. विल गेट द नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स अनुपा हैज. सो 55 - 36 इज इक्वल टू 19. सो योर ऑप्शन
सो 19 हेयर क्लिप्स है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 150, 156, 146 एंड नन ऑफ दीज, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 19 हेयर क्लिप्स है और इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मतलब द करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन दिस, सो दिस आंसर विल बी राइट नन ऑफ दीज, मतलब कि ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो वी हैव टू टिक द दिस वन, लास्ट वन. Now look at the number sentence 57 minus dash is equal to 37. So 57 में से ऐसा कौन सा नंबर आप लेस करेंगे कि आपको 37 मिलेगा. उसके लिए आपको क्या करना है, पहले 57 में से आपको 37 लेस करना पड़ेगा. अगर 57 में से 37 को हम लेस करेंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा कि हम तो 20 आया. दैट मीन्स यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, दिस 20 इज द नंबर दैट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 57 टू गेट 37. अगर 57 में से हम 20 लेस करेंगे तो 37 आएगा, लेकिन टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 37 फ्रॉम 57. So answer B is correct, that is your 20. So all the MCQs are over now. We move on to page number 78 now. I am going to explain the 2 flowers, that is the activity that is given. I'll just explain the 2 remaining, you will do it on your own. Find the missing numbers to reach the center. Now here you can see in the center there is one number given, that is 30. Then 1, 2, 3, 4 and 5 petals of the flowers are given. In each petal you are given a box that you have to fill in with the correct answer. Now here 18 is given, that means you have to reach 30. 18 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आपको 30 मिले. तो उसके लिए देखिए मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है. यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ द नंबर दैट इज यू हैव टू राइट, यू हैव टू ऐड इट विद द गिवन नंबर टू रीच 30. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस आंसर दैट इज गिवन 30, यू हैव फ्रॉम 30 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट गिवन नंबर टू गेट द सेकेंड नंबर. मतलब जो आंसर 30 दिया हुआ है हमारे को, उसमें से हम जो पहला नंबर हमको दिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको सेकेंड नंबर जो है वो मिल जाएगा. सो 30 minus 18 is equal to 12. तो इस बॉक्स के अंदर हम 12 लिखेंगे. अब 12 and 18 को काउंट करिए, 8 plus 2 10, 0 कैरी 1, 1 2 and 3, so you will get answer 30. तो सेम वे जितने भी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर्स दिए हैं उन सारे फर्स्ट नंबर्स को 30 में से माइनस करना है, तो हमको यहाँ पर सेकेंड नंबर मिल जाएगा और उसको इस बॉक्स के अंदर लिखना है. जैसे 30 minus 29, 30 minus 29 दैट इज इक्वल टू 1, सो 29 plus 1 is 30. सेम वे 30 minus 20 इज इक्वल टू 10, और तो 20 plus 10 इज इक्वल टू 30. यहाँ पे 30 minus 25 इज इक्वल टू 5. तो 25 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30. फिर जो ये नंबर यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे और जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों को ऐड करिए, तो आपको यहाँ पर 30 आंसर आपका आना चाहिए. देन ओनली दिस आंसर इज राइट. नाउ 30 minus 22 दैट इज इक्वल टू 8. यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा. सो 22 plus 8 is equal to 30. तो दिस वे यू हैव टू फाइंड द नंबर. ये जो है प्लस का है. अब दूसरा एग्जाम्पल आई विल शो यू विच इज ऑफ माइनस. तो उसमें भी हमको करना तो सब्ट्रैक्शन ही है. वी हैव टू रीच द आंसर 10. योर दिस आंसर इज 10. सो वी हैव टू अगेन रीच, ऑल द नंबर्स हैव टू रीच 10, but how they will reach, this number is 42, this is 32, this is 47, this is 50 and this is 30. Now you have to fill in this box to reach 10. So 42 minus 10. अब जो फर्स्ट, अब इसमें हम रिवर्स करेंगे. इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर हमको दिया है उसमें से आंसर जो 10 है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि 42 minus 10 is equal to 32. So we will write this 32 in the given box. तो हमको सेकेंड नंबर मिलेगा. फर्स्ट नंबर माइनस द आंसर गिवन, दैट विल गिव यू द सेकेंड नंबर. पहला नंबर उसमें से आंसर को माइनस करिए तो आपको जो है सेकेंड नंबर मिल जाएगा. सेम विथ 32 minus 10 इज इक्वल टू 22. तो यहाँ पर आप बॉक्स में 22 लिखेंगे. अब इसको माइनस करके देखिए, 0 plus 2 minus 2 is 0 and 3 minus 2 is 1. So we have got 10 आंसर. सेम वे 47 minus 10 इज इक्वल टू 37. तो यहाँ बॉक्स में आपको 37 लिखना है. यहाँ पर 50 minus 10 इज इक्वल टू 40. सो इन दिस बॉक्स यू हैव टू राइट 40. Same way 30 minus 10 is equal to 20. So in this box you have to write 20. So this way you have to complete it. जहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है वहाँ पर नंबर आंसर माइनस फर्स्ट नंबर करना है, और जहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर माइनस
आंसर माइनस फर्स्ट नंबर, जहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है वहाँ पे फर्स्ट नंबर माइनस आंसर करना है, तो आपको जो है सेकेंड नंबर मिल जाएगा. सो दिस इज द वे यू हैव टू कंप्लीट दिस. इट इज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ये आपको एक्टिविटी पूरी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है. आई हैव रिटन इट कंप्लीटली सो यू कैन चेक इट. और ये एमसीक्यूज आपको नोटबुक में वन टाइम लिखने हैं. सो हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 3, दैट इज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. So dear children, from this only you will get in your exam also, because now your Diwali vacations are coming nearer, so I am not going to give you the work. I have already given a lot of work to do, so you will complete this work slowly within your vacation time. So dear children, till we meet on the next turn, till then bye bye, and complete all your work in your textbook and your notebook. So entire work, whatever I have explained today, everything you have to do it in your notebook except this page number 78. इसको खाली आपको textbook में करना है, बाकी सब आपको notebook में करना है. So dear children, I hope I have given lot of work. Till we meet on the next turn, till then bye bye and have a nice day.